Assalamu alaikum viewers, this is your host Imran Ahmed and you are watching Catalyst Record. इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इंडिया कंपैरिजन तो हमारा बनता नहीं. You are watching Catalyst Records. Let me give you a example first. I traveled in India from Jaipur to Lahore. Every part of India was very good set, beautiful field, lovely farmhouses. You enter Pakistan, it's like entering from America to Mexico. Desert, everything. People are lazy. People don't work very hard. You know, everybody wants to make money, but not doing anything. So my message is people should work hard. The culture should change, not just talk about it, but they should work. Everybody should work harder for their money, not accept free dues. Do you think that Indian people are very hardworking and active? Indian people are very hardworking and they are more honest than we are. If you don't work in India, you don't make money. In Pakistan, people want something free all the time. They want free. They want to criticize the government. They want to criticize this. They want to criticize that. But that's not the way forward. The way forward is hard work and honesty. Acha, do you think that these are the reasons that India is going faster? India is much faster than we are. They're far ahead. Even countries like Thailand, Philippines, they were far behind us. Even they are forward than we are. We are far behind everybody. And I don't know why. My personal reason is it's the mullahs who keep us back. I think people should forget, more concentrate on work, ethics, and less religion should be personal. If they are Shia, they should pray what they want to pray. If you are Sunni, you should pray. But nobody should criticize each other. And they should concentrate on work and education. More important is education. Education is very important. People should educate their children. They should go abroad, more education, more education. That's the way forward. India हमसे बहुत आगे जा रहा है. वो लोग मेहनत करते हैं and they are very progressive. They improve everything. In Pakistan, people destroy everything. Whatever we had, जब हमारे पास चीज़ें थी 47 में, उससे भी हम पीछे चले गए हैं. This is the problem. People don't want to work. I think Pakistan is no comparison to India. India is far, far ahead in everything. In every field, in education. You go to India, everyone can speak English. In Pakistan, you go to university, professor can't speak English. Something is lacking in Pakistan. I don't know what is that. Only, education will have more education, more education. कि इंटरनेशनल लेवल पे जो इनकी एम्बेसीज है इंडिया की, वो ज़्यादा एक्टिव काम कर रही हैं बजाय कि पाकिस्तान की. क्योंकि पाकिस्तान वाले जो है जितनी भी जिस तरह अगर लाइक एग्रीकल्चर के हिसाब से कनाडा बड़ा मुल्क है, अमेरिका बड़ा मुल्क है, यूक्रेन बड़ा मुल्क है, तो एक्सपोज होती हैं पूरी दुनिया में. तो एक्सपोज जो होती हैं उसमें अब हमारी नुमाइंदगी कितनी है, ना होने के बराबर है. हम मैक्सिमम दुबई तक चले जाएंगे, मैक्सिमम गल्फ़ स्टेट तक चले जाएंगे, हमारे आगे जा ही नहीं रही चीज़ों की. तो इस वजह से ना ये इश्यूज़ है. इसलिए हम इतना ज़्यादा मार्केट में शेयर नहीं ले सकते. अगर हम सिर्फ आप पोटैटो को ले लें, आलू को ले लें, तो जो आलू है वो हमारे वन ऑफ द बेस्ट हम लोग प्रोडक्शन होती है. इवन के पेप्सी का जो मोर देन 70% जो प्रोडक्शन है वो भी पाकिस्तान में हो रही है. इनके बड़े बड़े वेयर हाउस भी पाकिस्तान में. एक्सपोर्ट कहाँ पे हो रहा है? मैक्सिमम कहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है? कतर में हो रहा है, सऊदीया में हो रहा है. अभी यूरोप पूरा खाली पड़ा है. आपका इधर मलेशिया पूरा खाली पड़ा है. ये एरिया सारे खाली पड़े हैं. तो हमारी जो है ना वो नॉलेज नहीं है लोगों को आगे. वो हम लोग हमारी एम्बेसी उस तरह काम नहीं की जिस तरह इंडियन एक्टिव है और उनकी हर जगह पे नुमाइंदगी है. अब एक बंदे को बात अगर मिलती है ना तो वो पूरे अपनी कम्युनिटी को बताता है. हमारा इशू ये है कि हम तो कम्युनिटी को भी पूरी नहीं बताते. तो इस वजह से हमारे जो शेयर है मार्केट में वो कम है इंडिया की निस्बत. इंडियन क्या किया, इंडियन एक तकरीबन मैक्सिमम मालिक में ना अपने ब्रांड जो हैं वो रजिस्टर कराए हुए हैं. जिस तरह मेरा एक्सपीरियंस गल्फ़ का भी है, यूरोप का भी है, तो मैंने उनके देखे वहाँ पे अब बासमती चावल है. तो ये पाकिस्तान ने भी केस उस पर लड़ा इंग्लैंड में. जिस तरह पाकिस्तान की 1.5 मिलियन पॉपुलेशन जो पाकिस्तानी है वो इंग्लैंड में रहती है. यूरोप में बड़ी आबादी है पाकिस्तानियों की. तो ओवरऑल देखा जाए तो इसकी ब्रांडिंग का इशू है. इंडिया वाले क्या करते हैं, ये जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ पे अपना ब्रांड रजिस्टर करवाते हैं. उस ब्रांड के नाम से वो चावल चाहे पाकिस्तान से ले लें, लेकिन नाम वो अपना सेल करते हैं. अभी ये पाकिस्तान ने एक केस जीता भी था. जिस तरह हमारा एक नमक है पाकिस्तान का, या ये चावल है, बासमती चावल पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट चावल है. लेकिन ब्रांडिंग किसकी है पूरी दुनिया में? इंडिया की.
जिसकी वजह से इंडिया ज़्यादा शो होता है कि जी इंडिया है, ये कर रहा है, हत्ता कि पाकिस्तान की प्रोडक्शन भी कम नहीं है। तो मेन इशू जो है वो ब्रांडिंग का है। पाकिस्तान को ब्रांड की तरफ आना चाहिए, अपने ब्रांड रजिस्टर कराना चाहिए और अपने हर ममालिक में ना जो जितने भी स्टोर्स हैं वो अपना ब्रांड रखना चाहिए। मेड इन इंडिया करता है, इसलिए आपको इंडिया नज़र आता है। हमें क्या पता है ये अंदर चावल पाकिस्तान का है कि इंडिया का, कि जो लैंड होती है हमारे क्या गरीब किसान जो है, जो 5 एकड़ से नीचे वाला ज़मीन वो 70% है, जिनके पास 10 एकड़ से ऊपर है वो 20-30% होंगे मैक्सिमम। अब कल्टीवेशन कॉस्ट कितनी ज़्यादा है वहाँ पे, अगर हज़ारों के एकड़ के हिसाब से, सैकड़ों एकड़ के हिसाब से वो एक ही दफ़ा कल्टीवेट करते हैं। जो उनकी भी एक मिसाल, तो एक ही उनका इक्विपमेंट लगा, एक ही दफ़ा वो चीज़ें लेकर आए। हमारे क्या होते हैं यहाँ पे पुराने तरीक़ेकार भी हैं, तरीक़ेकार का भी इशू है ना, तो वो जदीद मशीनरी यूज़ करते हैं और हम लोग जो है वो अभी पुरानी मशीनरी में ही हैं, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा हो रही है और कल्टीवेट जो एरिया वो भी कम है। पानी का भी बड़ा इशू है, नहरों में पानी उस तरह नहीं आ रहा जिस तरह पहले आता था, ट्यूबवेल चलते नहीं क्योंकि बिजली बड़ी महंगी है। मैं ना, मेरा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है इसलिए थोड़ा सा मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि वहाँ के लोग ना, एक तो उनका लैंग्वेज बैरियर जो है ना, पाकिस्तानियों का लैंग्वेज का इशू है। हम लोग मैक्सिमम क्या इंग्लिश बोल लेते हैं, वहाँ के मैंने चेक किया कि उनके वो जिस मुल्क में जाते हैं वो उसकी लैंग्वेज सीख कर जाते हैं, बात करते हैं उनसे। और एक तो लैंग्वेज बैरियर, दूसरा ये है कि इसे क्या कहते हैं, मतलब उनका जो है ना एक्सेंट वो भी इशू है, नॉलेज का भी इशू है। हमारे जो हमारे यहाँ देखा जाए एग्रीकल्चर एक ही यूनिवर्सिटी है, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, उनके इंस्टीट्यूट है, हर जगह इंस्टीट्यूट है उनके। अगर आप देखें जाएँ कि पंजाब तो पाकिस्तान से बहुत छोटा है, लेकिन आगे इनका नागालैंड है, तमिलनाडु है, ये सारे इलाके सारे के सारे कल्टीवेट होते हैं, सवाए तिब्बत के पहाड़ों के इलाके नीचे सारी की सारी इनकी कल्टीवेट हो रही है। उनके दरिया भी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान के तो इतने नहीं हैं, वो भी खुश्क पड़े हैं। एजुकेशन की उनकी इकोनॉमी जितनी राइज हो रही है, जितनी उनकी इकोनॉमी बढ़ी है, जीडीपी उनकी बढ़ रही है, आपको क्या लगता है कि इसमें एजुकेशन सिस्टम का भी कोई फैक्टर है? 100% एजुकेशन का ही इशू है। हम एजुकेट नहीं होंगे जब तक, अब क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर अभी मैं क्यूबा की पढ़ रहा था, क्यूबा में 1000 बंदे पे 9 डॉक्टर हैं और हमारे 10,000 में एक भी डॉक्टर नहीं होगा। तो एजुकेशन क्या है ना, हमारे जो तरीक़ाकार है वो पुराना है। अब हमारे पास जदीद मशीनरी भी नहीं है। हम तो अभी अगर आप लोअर एरिया में जाएं या जनूबी पंजाब के एरिया में जाएं तो अभी भी भैंसों से वो हल चला रहे हैं। तो नॉलेज जो है, अब वो तो मेडिकल हर डिस्ट्रिक्ट में, हमारे तो लाहौर के अलावा अगर आप कहीं और निकल जाएं तो आपको यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं मिलेंगी, मैक्सिमम 5-6 शहरों में मिल जाएंगी। अब फैसलाबाद बहुत बड़ा है, तालीम का फुकदान है हमारे यहाँ, जदीद तरीन तालीम का फुकदान है, लिटरेसी रेट ज़्यादा होना चाहिए पाकिस्तान का। हमें हर चीज़ की नॉलेज होना चाहिए, जिस चीज़ की वो कम से कम उसको एक ट्रेनिंग देने के बाद वो काम करे, जो भी काम करे। हमारा जो किसान है मोर देन 70% अनएजुकेटेड है। अनएजुकेटेड, वो तो उसको तो लिखना पढ़ना भी नहीं आता, उसको अब एजुकेट करें। मल्टीनेशनल कंपनी ये काम कर रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो एजुकेट कर रही हैं, हर गाँव में जाकर वो बात कर रही हैं, उनको सिखा रही हैं, उनको इल्म दे रही हैं। तो उससे इंशाल्लाह उम्मीद तो है पाकिस्तान इंशाल्लाह ग्रो करेगा। इंडिया में जो है ना, इंडस्ट्री काफ़ी इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और उनका जो पर कैपिटल इनकम वो भी पाकिस्तान से बेहतर है। और ज़्यादातर उनके जो कॉटन क्रॉप्स और राइस जो है ना, वो ज़्यादातर उसकी एक्सपोर्ट ज़्यादा वो करते हैं। दैट्स वाई दे आर लीडिंग पाकिस्तान इन दैट पर्पज़। अच्छा, उनकी हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो खुद हो रही है, क्या यही वजह है कि उनकी इकोनॉमी और जीडीपी बढ़ी है? यस, दैट्स द मेन कॉज। क्योंकि जितना जो इंडस्ट्रियल एरिया होगा उसकी जितनी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी, आपका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और उसकी वजह से आप काफ़ी आपकी कैपिटल का ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। सर, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की बैकबोन जो है वो भी एग्रीकल्चर है, लेकिन फिर हम उस तरीके से क्यों नहीं काम कर पा रहे जिस तरीके से इंडिया कर रहा है? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात है कि वी आर नॉट गोइंग टू फैसिलिटेट द फार्मर्स। हम उनको उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं कर सकते। यही वजह है, आप देखें कि इवन देन यहाँ पे आप खाद ले लें, एक माइनर सा आइटम है, वो भी एक्सपोर्ट हो रही है, उसकी भी ब्लैक मार्केटिंग होती है। तो पाकिस्तान फार्मर्स जो है ना, दे आर नॉट सो फाइनेंशियली दे आर नॉट सो सेफ दैट दे कैन परचेज ऑन हाई रेट्स। दैट्स वाई कोई ज़्यादा पाकिस्तान जब तक गवर्नमेंट उनको सब्सिडी ज़्यादा डिक्लेयर नहीं करेगी, उसको हम फैसिलिटेट नहीं करेंगे, हाउ कैन वी इंक्रीज़ आवर दैट
एग्रीकल्चर सिस्टम। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, जिस तरीके से वो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में आगे बढ़ रहे हैं, हर सेक्टर में आगे ग्रोथ शो कर रहे हैं, जीडीपी उनका राइज हो रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन इस वक्त बनता है? पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन उस सूरत में बन सकता है कि हम अपने फार्मर्स को, हम अपनी जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको उनकी सही माने में उनकी ग्रोथ के सिस्टम को ऑर्गेनाइज करें और फैसिलिटेट करें। हम लोन्स, एग्रीकल्चर लोन्स लोगों को वन विंडो ऑपरेशन के तहत दें और काफ़ी जिससे वो फैसिलिटेट होंगे और इससे हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है दैट कैन बी इंक्रीज्ड। व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप्स हो कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, लोगों के रिव्यूज़ पसंद आए होंगे और जो वीडियो का टॉपिक था वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी हमें बताइएगा, और अगर आप कुछ हमें बताना चाहते हैं, तो कुछ डिस्कस करना चाहते हैं हमसे, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।